विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पिछली बार केवल 13 लोगों ने ज्वाइन किया था जी। इस बार पता नहीं कितने लोग ज्वाइन करेंगे। अभी तो शायद 13 ही है। 16 है महाराज जी। 16 हो गए। चलो हाँ जी। देखें क्या हाल चाल है, क्या होता है। धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। तब भाई मैं क्या करूं, मैं अपना क्वालिटी इस उम्र में अपनी क्वालिटी में इंप्रूव नहीं कर सकता। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। तो आज का जो है विषय ये है स्वामी विवेकानंद के कन्वर्सेशंस एंड डायलॉग। हाँ है ना। कन्वर्सेशंस एंड डायलॉग, स्वामी विवेकानंद के साथ वार्तालाप, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए। हाँ। और उसके ऊपर मैंने फिर किया है। पहले इसकी समरी करेंगे देवाशी, ठीक है। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। आइए। स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। जननी शारदं देवीं गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापोहारिणे। I offer my Sashtanga Pranam to Revered Swami Maharaj and my humble to all the devotees. Today's topic is conversation Swamiji and his disciple Sharat Chandra Chakravarti in Calcutta. Swamiji wants a band of young Bengal who alone are the hope of the future lies in the youth of character, intelligent, renouncing all for the service of others and obedient, who can sacrifice their lives in working out his ideas and thereby do good to themselves and the country at large. Now, they continue. Yes. Disciple, what ideal should we follow now? You have now to make the character of Mahavira your ideal. See how at the command of Ramchandra crossed the ocean, obeyed the Guru without questioning and observed Brahmacharya. This is the secret of success. Disciple, sir, at times I am overcome by low spirits. I don't know how, Swamiji. Then think like this. Child am I. I associate with him, and shall I have such weak-mindedness and lowness of spirits? Such weakness of mind and heart, stand up, saying, I am possessed of wisdom. I am possessed of steady intellect. I am a knower of Brahman, a man of illumination, fully conscious of your dignity, by remembering, I am the disciple of such who is the companion Sri Ramakrishna, conqueror of lust and wealth. This will produce good effect. Allow weakness to overtake your mind. Remember Mahavira. Remember, and you will see that the all weakness, all cowardice will vanish at once. Now go on working. Set yourself to some work for the good of men sunk in ignorance and delusion. You will see that such experiences will come of themselves. On path of karma, the disciple said, I feel nervous to enter into this labyrinth, a confusing path in which it is easy to get lost. Neither have I the strength. The scriptures also
impenetrable is the path of karma. Swamiji, what do you want? What do you wish to do then? Disciple, to live and hold discussions with one like you, who has realized the truth of all scriptures, and through hearing, thinking, and meditating on the truth, to realize Brahman in this very life. I have no enthusiasm or perhaps the strength for anything else. Swamiji, if you do that well, you can go on it and speak about your thoughts and conclusions about the Shastras to others. It will benefit them. As long as there is the body, one cannot live without doing some work or other. Therefore, one should do such work as is conducive to the good of others. Your own realizations and conclusions about scriptural truths may benefit many others. Put them into writing, which will help others. First, let me realize the truth, then I shall write. Ramakrishna used to say, without the badge of authority, a symbol of authority, none will listen to you. Swamiji, if you put down in easy language the substance of the discussions which you hold with the sadhus of this world, it may help many. What is the good of that spiritual practice or realization which does not benefit others, does not conduce to the well-being, and confusion, does not help in rescuing them from the clutches of the lust and wealth? Do you think, as long as one jiva endures in bondage, you will have any liberation? So long as he is not liberated, it may take several lifetimes. You will have to born help him to make him realize every jiva is part of yourself, which is the rationale of all work for others. So, disciple, sir, it is most tremendous step that without the salvation of all, there shall be no salvation of an individual. I have never heard of such a wonderful proposition. There is a class who hold such a view. They say that individual liberation is not the real and perfect form of, but universal and collective liberation through the. But when the mind becomes bereft of all limiting adjunct and is not Brahman, where is the position for him? So nothing. Devashish, you are supposed to do summary. Sir, Maharaji, I have tried to cover up everything. No, it is, you have to summary here to do. You are continuously reading. Maharaji, I have reduced the talks and taken the summary. Okay, proceed. Go ahead. That is how I can complete in 13 minutes. Okay, continue. Swamiji, yes, what you say is right. And most Vedantists hold that view, which is also this. Day and night, think and meditate on Brahman. Meditate with great mind. And during the time of awakeness to outer world, do some work for the sake of repeat in your some noises. अरे बाबा, संजय देखो तो, प्रभा देखो तो क्या प्रॉब्लम है? रिकनेक्ट करो तो जरा, आवाज आ रही है, कुछ हो रहा है. देवाशीष कंटिन्यू करो. Do some work for the sake of others or repeat in your mind. Let good happen to jivas and the world. Let the mind of all go in the direction of Brahman. Even by such continuous current of thought, the world will be benefited. Nothing good in the world
fruitless, be it work or thought. Your thought currents will perhaps rouse the religious feelings of someone in America. Disciple, are fit objects of your mercy. If you bless me without taking my fitness into consideration, then I will consider myself to Swamiji. Always remember that renunciation is the idea, is the root idea. Unless one is initiated into this idea, not even Brahma and the world gods have the power to attain mukti. Disciple, it's a matter of deep regret that even hearing this from you almost every day, I have not been able to realize, Swamiji, renunciation must come, but in the fullness of time one attain to the knowledge of himself. When the few sanskaras as of previous life are spent, then renunciation crowds up in the disciple with great entity. You must save me and lift me from the ignorance in this very life. Swamiji, say who can save anybody? The Guru can only take away some covering veils. When these veils are removed, the Atman shines in its own glory and manifests like disciple. Then why do we find mention of grace in the scriptures, Swamiji? Grace means this: he who has realized the Atman becomes a storehouse of great power, making him the center, and with a certain radius of circle is formed. And whoever comes within the circle becomes animated with ideas of that saint. That is, they are overwhelmed by his ideas. Thus, without much religious striving, they inherit the result of his wonderful spirituality. If you call this grace, you may do so. Still, the noise is coming. Some Devashish, what you do? Devashish, you put your video off. I think your own sound is getting, distorted. So you put your video off. Then I think the sound will be better. Disciple, still that is coming. Oh my God. Sanjay ji, please. क्या है कि किसी आपका फैन तो नहीं कैच हो रहा कहीं? मुझे लग रहा है आपका फैन चल रहा है, कहीं उसकी वाइब्रेशंस है, या फिर किसी का माइक दो लगा हुआ है, दो मोबाइल किसी ने जोड़ा है एक जगह में। कहीं दो डिवाइसेस तो नहीं चल रहा है एक साथ। मैं फैन एक वीडियो कर दिया। दिलीप भाई, आपका साउंड भी ऑफ कर दो ना, आपका भी म्यूट कर दो। हाँ, अच्छा, मैं करता हूँ। अभी बंद हुआ। ठीक है, चलो। There's no other grace than this, Swamiji. Yes, there is. When the Avatara comes, then with him are born liberated persons as helpers in his world play. Only avatars have the power to dispel the darkness of a million souls and give them salvation in one life. This is known as grace. Disciple, yes, sir. But what is the way for those who have not been blessed with the sight of him? Swamiji, the way for them is to call on him. Calling on him, many are blessed with his vision, can see him in human form just like ours and obtain his grace. Those who have seen Sri Ramakrishna are really blessed. Their family and birth have become purified by it. All of you will also get his vision. The very fact that you have come here shows that you are very near to him. Nobody has been able to understand who came on earth as Sri Ramakrishna. Even his own nearest devotees have got no real clue to it. Only some have got a little inkling of it, and all will understand it afterwards. मेरा question भी है महाराज जी इसका ऊपर में. All will understand it afterwards. अच्छा, disciple, sir,
There is such a diversity of religions and ideas among the people of this country that is a difficult affair to bring harmony among them. Swamiji in anger. If you think any work difficult, then do not come here. Through the grace of God, all paths become easy. Your work is to serve the poor and miserable without any distinction of caste or color, and you have no need to think about the results. Your duty is to go on working, and then everything will follow of itself. My method of work is to construct and not to pull down. Read the history of the world, and you will find that a great soul stood as the central figure in a certain period of a country. Animated by his ideas, hundreds of people did good to the world. You are all intelligent boys and have been coming here for a long time. Say, what have you done? Couldn't you give one life for the service of others? In the next life, you may read Vedanta and other philosophies. Give this life for the service of others. Then I shall know that your coming here has not been in vain. Saying this, Swamiji sat silent, wrapped in deep thought. After some time, he added, after so much austerity, I have understood this as the real truth. God is present in every jiva. There is no other God beside that. He who serves jiva serves God indeed. After some pause, Swamiji addressed the disciple, said, when I have told you today, what I told you today, inscribe in your heart, see that you do not forget it. Sri Ramakrishna Pranamastu. Oh, namaskar. Thank you. पंकज भाई हैं? पंकज भाई, महाराज जी पहले मेरा लेने का है। वेट मिनट, पंकज भाई हैं? एनीवे, कोई बात नहीं। अब थैंक यू। अब क्वेश्चन आंसर्स हैं जी। तो पहले तो हमारा कुंडू से है, कुंडू करेंगे क्वेश्चन। महाराज जी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को जाना है बाहर, तो आप पहले मेरे ले लें। जी हाँ, कर लो, ले लो। हाँ महाराज जी, मेरा पहला सवाल है, महाराज जी सभी की मुक्ति ना होने पर व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं, इस मत की आलोचना व प्रतिवाद। क्या हुआ? फिर से पढ़ो। सभी की मुक्ति ना होने पर व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं, इस मत की आलोचना व प्रतिवाद। तो इसमें आलोचना क्या है? नहीं, ये तो टाइटल आलोचना यानी एनालिसिस। हाँ, और प्रतिवाद यानी प्रतिवाद यानी कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, तो ये क्या इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन क्या अरे हो ये रहा है? हिंदी में किया है, उसको ऐसे ही माने टाइटल बना दिया है भाई। मतलब अच्छा। ये है कि अब स्वामी जी इसके बारे में, इस विषय में, कि स्वयं की मुक्ति, सबकी मुक्ति के बिना स्वयं की मुक्ति संभव नहीं है। हाँ यानी सब नहीं, ये बात पर इसकी आलोचना क्या हो सकती है? और आलोचना यानी बातचीत करना है, डिस्कशन। ये बातचीत हमारी जो हो रही है ना, इसको आलोचना बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। ये डिस्कशन हो रहा है, इसको आलोचना कर रहे हैं। ओके, अच्छा, राइट महाराज। ओके, नाउ माय क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 228। महाराज जी, हाउ टू रीड दैट द 10 or 12 boys to be selected are the faith of Nachiketa? Who has that power to read? क्या है? फिर से पूरा पढ़ो उसको। हाँ, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ महाराज जी, पूरा पढ़ रहा हूँ। Dullness is written on their faces. Their hearts are devoid of anger. Their bodies feeble and unfit for work, and minds devoid of courage. What work will be done by these? If I get 10 or 12 boys with the faith of Nachiketa, I can turn the thoughts and pursuits of this country in a new channel. अब प्रश्न क्या है तुम्हारा? हाँ, अब मेरा प्रश्न ये है
कि स्वामी जी ये कह रहे कि यदि मुझे 10 और 12 बच्चे वैसे मिल जाए कि जो नचिकेता सरी के हो तो मैं ये कंट्री को बदल सकता हूँ, परंतु हाउ टू रीड कि ये नचिकेता सरी के बच्चे होंगे, इट्स वेरी अरे डिफिकल्ट। बाबा, नचिकेता तो दृष्टांत है। हाँ, पर वो नहीं उस नचिकेता से चेहरा नहीं, नचिकेता से उम्र नहीं, ऐसा नहीं। अरे ऐसे नहीं, महापुरुष ऐसे होवे जिसमें शक्ति हो, श्रद्धा होवे कि वो यमराज के सामने भी चले गए। ऐसे हाँ व्यक्ति मुझे मिले, 10-12 व्यक्ति मिले तो मैं समाज को बदल दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मेरा वही सवाल है, पर ऐसे व्यक्ति जो मिले वो व्यक्ति ऐसे ढूंढना कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके अरे स्वामी विवेकानंद के पास कितने लोग आए बाद में, आए कि नहीं आए? हाँ फिर स्वामी नहीं नहीं, पर विवेकानंद के कितने सारे शिष्य थे। महाराज हम जी, लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़ के आए कि नहीं आए उनके पास? महाराज तो जी ढूंढने मेरे का क्या मतलब है? महाराज जी कितने 8-10 उनके कितने मुख्य शिष्य कितने थे स्वामी? वो क्या है पता नहीं, वो 16-18 ऐसे शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। हाँ, विरजानंद और ये अरे लोग इसके कितने अलावा थे? देखो, बाद में अभी तो स्वामी विवेकानंद तो 100 साल से सबको इंस्पायर कर रहे हैं ना। हाँ 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 और ऐसे ही लोग तो जा रहे हैं जिनमें नचिकेता की श्रद्धा, ऐसे ही लोग जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के पास। जी महाराज, और एग्जैक्टली। जो गुरु होता है वो पहचान लाता है, वो पहचान जाता है कि ये नचिकेता जैसा है कि नहीं है, यानी उसमें हाँ नचिकेता का मतलब है ऐसे सद्गुण होने चाहिए। हाँ हाँ, उस प्रकार के सद्गुण, वो तो बिल्कुल बराबर। पर तो प्रश्न नहीं क्या होता है, महाराज जी, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं महाराज जी, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि इन्होंने डिसाइपल को ये कहा है, तो डिसाइपल कैसे इसको ढूंढ पाएंगे? स्वामी तो ढूंढ सकते, अरे देयर इज नो क्वेश्चन। वो तो स्वामी जी बोलते हैं कि अगर मुझे ऐसे मिले तो, यही बोल रहे हैं स्वामी जी। हाँ और डिसाइपल थोड़ी बोलते हैं कि तुम खोज के लाओ। अच्छा, राइट, okay, now third question Maharaj ji, इसको Maharaj ji, why the disciple Sri Sarat Chandra was not able to work then out in the practical field? महाराज जी ये क्या, यानी डिसाइपल इनके इतने फेवरेट थे स्वामी जी के, और फिर भी ये स्वामी जी लिख रहे हैं यू आर नॉट आउट फिट टू रिसीव माय हाई आइडियाज बट यू आर नॉट एबल टू वर्क देम आउट इन द प्रैक्टिकल फील्ड। वो कहते हैं कि बिकॉज ही हैड बिकम, वो क्या है प्रश्न क्या है उसमें? बिकॉज ही हैड बिकम renowned and great spiritual power etc, क्या है वो वहाँ जो है वो महाराज जी ये ओरिजिनल है। थर्ड पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, स्वामी जी, among those who appear to me to be of good caliber, some have bound themselves by matrimony, some have sold themselves for the acquisition of worldly fame or wealth. Why some are feeble bodies, the best, the who form the majority are unable to receive any high idea. You are no doubt fit to receive my high ideas, but you are not able to work them out in the practical field. हाँ, तो ये तो बहुत उच्च तो कोटि के। प्रत्येक व्यक्ति की एक क्षमता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कुछ व्यक्ति जो है बुद्धि के स्तर पर काम कर सकते हैं, कुछ लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, कुछ लेक्चर दे सकते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर सकते हैं। सभी लोग प्रैक्टिकल फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं, तो व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो महाराज जी ये तो बहुत हाई लेवल के वो थे। हाँ जरूर है, स्वामी विवेकानंद के जो कुछ बहुत सारे शिष्य थे उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। ये स्वरूपानंद थे और भी जितने थे उन्होंने हाँ खूब सेवा की। ये हाँ बनारस का रामकृष्ण मिशन भी स्वामी विवेकानंद के शिष्यों ने चलाया, प्रारंभ किया। जी, हाँ तो ऐसे भी तो थे। अच्छा, वो शरद चंद्र नहीं हुआ तो क्या हुआ? he has some other qualities. हाँ वो दूसरे प्रकार का था। ओके, राइट महाराज जी, पेज नंबर 228 पे ये क्वेश्चन नंबर 4, 99% of the sadhus, even after renouncing lust and wealth, get bound at last by the desire of name and fame. That last infirmity of noble mind, haven't you read? Maharaj ji, is it even today? Secondly, if you do a work, name and fame always follows, whether it is good or bad.
How can it be stopped? तो कैसे होगा? आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने लेक्चर दिया है, क्लास किया है, और आपके बोलते हैं अरे स्वामी जी ये ब्रह्मशरण जी की क्लास लेक्चर बहुत अच्छी होती है। आपने मेरी प्रशंसा कर दी और उसके बाद सबको बोलने लग गए, तो ये तो होगा रिएक्शन। अब मेरे को मुझे देखना है कि मेरे पे नाम लिख का फर्क उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। नहीं, तो जिस प्रकार काम कांचन से सावधान रहना पड़ता है, उसे नाम यश से भी सावधान रहता है। ये साधना का विषय है, ये हमको महाराज सावधान जी रहना ऐसा पड़ता है। है कि भाई चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, हाँ, नहीं, मेरा सवाल छोटा सा इसके अंदर है कि जो भी व्यक्ति काम करता है उसका नाम तो आएगा ही और फेम भी आएगी। हाँ वो तो आएगी, तो उसको सावधान आएगी। रहना है। नाम यश आएगा, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। अच्छा जी। उसको अहंकार नहीं हमेशा होना समझ चाहिए। उसको हमेशा अरे, समझना चाहिए कि मैं जी। प्रभु का दास हूँ, प्रभु हाँ, मुझसे हाँ। करा रहे हैं। ये बात कंटिन्यूअसली उसको सोचना चाहिए। अच्छा, ओके, महाराज, महाराज, हाँ, हाँ, हाँ महाराज, इसमें ये है ना कि हम काम करते हैं तो अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो खुशी तो होती है, फिर क्या करें? ये हाँ, ऐसा है कि ये जो है ना, ये अहंकार के कारण होती है। अगर अच्छा, ये होवे कि मैंने प्रभु का काम किया है, अहंकार का तो ये जो प्रशंसा हो रही है ये प्रभु की ने मुझे ठाकुर प्रेरणा का। करके किया है, तो ठीक है। हाँ। और नहीं तो ये तब भी बंधन का कारण होगा, याद रखो। तब भी महाराज खुशी तो होगी ना, प्रभु का कार्य किया नहीं, तब। प्रभु का काम होगा तो ठीक है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने करा, हम्म, दूसरा कोई भी आ सकता। ठीक है। प्रभु जो ठीक। है मुझे हटा के दूसरे को कर सकते हैं, दूसरे के माध्यम से कर सकते हैं। जी, प्रभु हाँ, जो है वो तो कीड़े मकोड़ा के बड़े बड़े बना देंगे उनको। ऐसा कई जगह पे इस बात आती है कि सामान्य व्यक्ति है कि प्रभु की प्रेरणा से वो महान हो गया, इतना बड़ा सारा कार्य किया। ये तो प्रभु की इच्छा से होता है। जी, ये बहुत जी महाराज। सावधान रहना चाहिए, नहीं तो अहंकार जो है वो आपको लक्ष्य से दूर ले जाएगा। ये बात ध्यान रखना चाहिए। जी, राइट। महाराज, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 229। Maharaj ji, hearing of kirtan does not come in bhakti. Here written, listening to the kirtan, the country is well nigh converted into a country of women. हाँ महाराज जी, इसका क्या मीनिंग है? इसकी ये लिखा हुआ है ना? देखो 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 देखो, जी, ये है ना, कीर्तन करेंगे, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हाँ, सुबह शाम कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, और उसके बाद और कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी नहीं कर रहे हैं, बस कीर्तन को ही उन्होंने धर्म ले रखा है। तो औरतें भी तो यही करती है, बैठ गई अपने कुछ भजन भजन कर लिया, ताली बजा लिया। इससे हाँ, क्या होने वाला है? बस सेवा करोगे दूसरों की, ध्यान करोगे, ये नहीं। केवल कीर्तन तो बर्बाद करता है। अच्छा। पर ये भक्ति का एक माध्यम भी है। अरे केवल माध्यम है, लेकिन अब वास्तविक भक्ति तो अपने को सर्वस्व त्याग है। केवल केवल ताली बजा के कीर्तन करना ही भक्ति नहीं है, वो तो प्रारंभिक है। जी, ओके, यानी हाँ, सूरदास तुलसीदास जो भजन कीर्तन भी करते थे, लेकिन सर्वस्व का त्याग भी किया था उन लोगों ने कि नहीं किया था? क्या किया था? कंप्लीट तब किया। त्याग ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन हम केवल कीर्तन तो लेंगे, तो त्याग नहीं लेंगे भक्ति का। जी, ओके, राइट महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 231। महाराज जी, प्लीज एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, impenetrable is the part of कर्म। कर्म का इंग्लिश हिंदी में है हाँ, कर्मणा गहनो गति ही। हिंदी जी, ट्रांसलेशन जो है संस्कृत में हाँ, गीता में जो है, हाँ, वो यही कर्मणा गहनो गति। कर्म जी, की जो गति है वो बड़ी गहन है। इम्प्रिंटेबल यानी समझ में नहीं आती। नहीं, वो तो है ना अंदर तक यानी घुसती। केवल मैंने किसी को खाना खिला दिया, हाँ, किसी का घर साफ कर दिया, ये केवल ये नहीं है भक्ति कर्म। पूरी एकाग्रता से ये समझ के कर्म करना कि भगवान का कर्म करना है, भगवान करा रहे हैं, अहंकार न आवे, इतना करना। ओके, ये अत्यंत कठिन है। अर्जुन से भगवान ने कितना कर्म कराया,
अगर अर्जुन नहीं समझता कि कर्म क्या है तो वो समझता है कि मैंने ही सब लोगों को मारा है और फंस जाता। ओह तो जी ये कर्म जो है, संसार में सभी लोग कर्म करते हैं, लेकिन कर्म को साधना में करना कितने लोग कर सकते हैं? और ये है गहन गति, ये है बड़ा डिफिकल्ट समझना। हाँ इसको कहते हैं गहना गति। अत्यंत गहन है कर्म को समझना, कि कब जी साधना होता है, कब अहंकार का कारण होता है, कब बंधन का कारण होता है। ये बहुत डिफिकल्ट है करना। अच्छा थोड़ा सोच के देख लो तुम। जी महाराज जी। तुम जब सारा इतना सब सोचने के बाद में जब कर्म करते हो तो क्या ये सोचते हो कि मैं कर्मयोग कर रहा हूँ? नहीं वो तो मैं संसार का कर्म कर रहा हूँ, मेरा नाम हो गया है, मैं लॉयर हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, ये सब हो गया। वहीं के वहीं बड़े रहते हैं वो। कर्म जी हम कर्म सोचते हैं कि कर्म साधना है, और साधना होती नहीं है हमारी। महाराज जी, हम कर्म करते हैं ये सोच के कि किसी का भला हो जाए, किसी का ये हो जाए, ये साधना नहीं होगी। अरे अहंकार है तो। हाँ अहंकार किसी का भला हम नहीं तो कर सकते। तो ये महाराज अच्छा जी, अच्छा अच्छा काम, सेवा काम भी जो है अहंकार हो गया ना, कि मैंने इतने लोगों का भला किया, इतना पैसे की सेवा की। और क्या? हमारे जी यही तो ऊपर के क्वेश्चन में भी था कि जब कर्म करते हो तो अहंकार की भावना आई जाती है। हाँ, नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसमें महाराज जी नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो गहन कहा, बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7। अरे 10 मिनट बाद आता हूँ मैं काम करने। नंबर 7 महाराज जी, if one जीव is a bondage, is in bondage, no liberation of sadhak is possible. One has to take several lifetimes. It means for the bad and evil deeds of others, one has to take several births to help him. Please explain merits and demerits of this view. देखो हाँ क्या कहते हैं जी कि अगर मेरे को संभव हो तो मैं जन्म 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 लूं और लोगों का हाँ कल्याण करूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हाँ मे आई बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर थाउजेंड्स ऑफ मिजरीज। यस यस मेरा बार बार जन्म होवे, महान हाँ कष्ट पाऊं, जैसे जी लोगों का कल्याण हो सके। कितना उदार भाव, जरा सोचो तो। जी कितना विशाल हृदय है, इतना सोचो तो। ये मेरिट की बात कर रहे हो ना, ये कितना बड़ा विशाल है, मेरिट है, देखो तो, हाँ सोचो तो। इतना आवे ना तब लगता है कि अरे ये भगवान को प्राप्त करके क्या होने वाला है। मुक्ति नहीं हो मेरे को, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुक्ति नहीं हो मेरे, बार बार जन्म ले लेकर जगत का कल्याण। जी कितना उदार भाव। महाराज जी ये बिल्कुल सही स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया है, लेकिन आज की तारीख की अंदर जितने साधु सन्यासी है और तो इस है, तो उनकी भी ये भावना रहती है, ये भावना तो उनकी ये रहती है कि मेरे को ये जन्म में ही मुक्ति मिल जाए। अरे अरे, ये सब इतनी सारी इतनी ऊंची भावना थोड़ी तो भावना होती है, नहीं तो क्यों करेंगे वे? जी अरे हमारे हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनका तो नाम देश कुछ भी नहीं होता। हाँ फिर जी। My next question, page number 233. Nothing good in the world becomes fruitless, be it work or thought. Your thought currents will perhaps rouse the religious feeling of someone in America. Maharaj ji, please elaborate this sentence. कि ये जो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो भी अच्छा कर्म और कार्य है वो अमेरिका में भी इसका उसका फायदा मिल सकता है किसी को। प्रभाव कभी न कभी वो बना रहेगा। जैसे टीवी है, हाँ और टीवी में अगर रिकॉर्ड हो गया तो पड़ा रहेगा वो। हाँ 2 साल 5 साल 20 साल बाद अगर किसी ने खोला तो वो सुना देगा, उसको काम आएगा। इसी प्रकार अगर आप जगत का कल्याण करोगे, शुभ सोचोगे, तो इसके संस्कार बने रहते हैं। हाँ याद रखिए, अभी यानी 100 साल 1000 साल पहले ऋषियों में से जो सोता था, ध्यान किया था, उसके हाँ संस्कार प्रभाव बने रहते हैं।
और अगर मैं ध्यान और संस्कार इस प्रकार से करूं तो उसका प्रभाव मुझे मिलेगा। तो मेरे को उसके पीछे से जैसे मैं कहता हूँ ना, उसके ऊपर खूब जोर से मुझे और महत्व मिलेगा। नहीं, यानी जो आप करेंगे, अच्छा हाँ, शुभ काम करोगे, वो संस्कार अजय जैसे वातावरण में कहना चाहिए, वातावरण में बने रहेंगे। और बराबर। अगर कोई व्यक्ति शुभ करेगा तो उसको हाँ, वो संस्कार जो वातावरण बने रहेंगे, उसको हाँ। वो मदद करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे। अच्छा महाराज जी, सवाल ये उठता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हजारों साल पहले जो काम किया था, उसका फायदा आज हमको मिल रहा है? पूरी दुनिया नरक में जा रही है, कहाँ से उसका फायदा हुआ? जैसे नहीं नहीं, उन्होंने वो कहा, अरे सभी थोड़ी जा रहे हैं। दूसरे लोगों ने पाप तो किए थे, केवल ऋषि मुनि तो 10-20 ऋषि मुनि थे, जी, लेकिन हजारों हजारों लोग तो बुरा काम भी करते थे ना। हम्म, आज महाराज जी, ये जो गुड थॉट्स की बात कर रहे हैं विच कैन अफेक्ट पीपल एज फार एज अमेरिका, तो उसके लिए जो ऐसे थॉट्स कर भी रहा हो तो उसके अंदर वो सिंसेरिटी और प्यूरिटी भी रहनी चाहिए, तभी तो वो वहां पहुंचेगा ना। नहीं नहीं, जो भी विचार आप करते हैं, जी स्वामी विवेकानंद ने ये बात कई जगह पे हाँ अपने गंभीर पहले भी टॉक्स में कही। है, हाँ हाँ जो भी विचार करेंगे वो बना रहेगा। हाँ हाँ। अब वो उसमें क्वालिटी कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, आप अच्छा। जैसे बोल रहे हैं कि होना कॉस्मोस में चाहिए या पड़ा नहीं होना रहेगा। हाँ चाहिए, ये तो हम सब नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो इट भी विल मैं कर रहा हूँ उसका एक इम्प्रेशन बना रहेगा। बना रहेगा। अच्छा। and that can give a fruit even after thousands of years. हाँ, तो उसके बाद हम्म, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट रघुनंदन स्मृति। मैं कुछ भी नहीं जानता भाई रघुनंदन स्मृति। Okay, okay. Now, page number 236, question number 10. Maharaj ji, please explain the meaning of renunciation must come, but in the fullness of time. What is the meaning here? Fullness of फुलनेस time. ऑफ प्यार यानी ठीक समय पे आएगा, ठीक समय पर। अच्छा, हाँ, यानी हम अपना काम करते जाए, सही समय पे हमें renunciation मिलेगा, हाँ ये हाँ 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 हाँ। okay. And my last question is, Swamiji has given a definition of grace. Is this grace is a God gift or can it be achieved? कृपा 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 जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, कृपा बराबर है, पर हाँ। ये कृपा हमको ईश्वर से प्राप्त होती है या हम खुद इसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं नहीं, कृपा जो है वो ईश्वर से मिलती है, लेकिन हम उसके अधिकारी होना चाहिए। अरे, ईश्वर की कृपा तो बह रही है। हाँ ये तो पालतू ठाकुर का दृष्टांत है फेमस, जी, कि कृपा की वायु बह रही है हाँ और तुम्हारी नाव है पानी में, लेकिन तुमने उसका जी, जो वो है ना, पाल नहीं खोली, जी, पाल नहीं खोली हाँ हाँ तो हाँ, कृपा नहीं yes, लगेगी, जी तो महाराज पाल जी, खोलना पड़ेगा। जी। अच्छा, ये हिंदी में लिखा हुआ है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, स्वामी जी। महाराज शारदानंद जी भी कहते थे कृपा होच्छे कोरे पावा, मींस इफ यू डू देन ओनली यू अच्छा विल अच्छा, गेट ना वो ठीक कृपा। है, उसका दूसरा क्वेश्चन पहले सुनने दो उसको। हाँ महाराज जी, मैं ये हिंदी में पढ़ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ स्वामी जी, वह भी है जब अवतार आते हैं तब उनकी लीला के साथ साथ मुक्त एवं मुमुक्षु पुरुषगण उनकी लीला की सहायता करने के लिए देह धारण करके आते हैं। करोड़ों जन्मों का अहंकार हटाकर केवल अवतार ही एक ही जन्म में मुक्त कर दे सकते हैं। इसी का अर्थ है कृपा। हाँ, हाँ, ये ये जो जो है वो, जी, जो गुरु जो अवतारों की कृपा होती है, हाँ तो वो एक ही जन्म में लोगों को, बहुत से लोगों को मुक्त कर देते हैं, और जी, नहीं तो उनको जन्म कदा तपस्या करके ठीक अपने को साधना कर करके ठीक होना पड़ेगा, लेकिन वो लोग कृपा करके मुक्त कर। हाँ। तो जो अब महाराज अवतार जी यहाँ होते पे हैं वो अज्ञान को अपने कृपा से मुक्त कर दूर कर नहीं, देते। महाराज जी, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब ठाकुर ने अवतार लिया था तो उनकी लीला के लिए इन्होंने पंडा और अपने पार्षदों को लेके आए थे, तो ये तो ऑलरेडी मुक्त है।
तो इन पे नहीं कृपा का नहीं, क्या सवाल आता वो उनसे, अब ठाकुर तो चले गए, है? हाँ उसकी कृपा का क्या हुआ? जी, तो कृपा Very उनके शिष्यों में चली गई, अब शिष्यों के द्वारा कृपा हुई, हाँ 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 जी, और उसके बाद शिष्यों के शिष्य हुए, हाँ तो वो कृपा कर रहे हैं। अच्छा 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 जी, बस महाराज जी ये सवाल थे मेरे। प्रणाम। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा। महाराज गिरीश घोष का अपन ये ले सकते हैं ना, गिरीश घोष का। बहुत सारे दृष्टांत ले सकते हो, तो कृपा हाँ, कृपा के तो बहुत सारे दृष्टांत दिए जा सकते। कृपा। देखो लेकिन ऐसा है, सुनो जी निवेदिता, हाँ जी महाराज। और तुमने जो उसके पहले बात कही ना, हाँ उसको ध्यान रखो, हाँ करे पावा, हाँ, कोरे पावा। हाँ यानी वो जो है वो उनके क्वेश्चन में नहीं है, ये तुमने जो डिस्कस करनी है निकाला है ना, उसमें बोल रहा हूँ हाँ 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 कि अगर याद रखो, हाँ अगर तुमको हाँ खूब ध्यान, जब साधना करने की इच्छा हो रही है, खूब जी। साधना कर रहे हो, तो समझ लो हाँ कि ये भगवान की कृपा है। अच्छा अच्छा। और यतीश्वरानंद जी कहते थे, हम्म ग्रेस कम्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट। यही बोल रहे। कृपा जो आती है वो कैसे आती है? पुरुषार्थ सेल्फ के एफर्ट। रूप में आती है। मैं ठीक है। खूब करूं, खूब करूं, खूब करूं। कृपा का अर्थ ये नहीं कि मैं बैठा रहूंगा और सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं। मेरी इच्छा होती है कि खूब करूं, खूब प्रयत्न करूं, इसको बोलते हैं। जी जी। महाराज इच्छा तो बहुत होती साधना करने की, लेकिन कर नहीं पाते, तो वो क्या? अच्छा, कब कृपा आपकी आधी हो गई, आप कर ही नहीं पा रहे हो, कृपा आधी हो है गई आपकी, आप नहीं कर रहा हो, तो क्या करें? और नहीं के बराबर हो गया। चलो अच्छा भाई सुबीर मुजुमदार। महाराज जी कुंडू जी का मेरे से पहले था शायद। हाँ अच्छा महाराज। कुंडू जी, क्यों? अच्छा उनको जाना है क्या? हाँ अच्छा कुंडू का पहले है, ठीक है, चलो। हाँ हाँ भाई महाराज। कुंडू। हाँ महाराज पहला क्वेश्चन महाराज, पेज 227 to 28. Swamiji wanted a band of young people, intelligent, renouncing all for the service of others, and obedient, with the faith of Nachiketa. Very often we find intelligence drives one to self-centeredness and personal ambition, and obedience to servitude. What sort of intelligence and obedience are meant here? Does Shraddha mean self-confidence? नो देखो ऐसा है कि तुमने यू हैव मेड अ डेफिनेशन, और यू कंप्लीटली सर्कमस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। यानी इंटेलिजेंस का महाराज। मतलब बुद्धि होता है, बुद्धि। तो जो तुमने बात कही ना, अच्छा। वो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है। जो बुद्धि यानी अच्छा। विचार, चिंतन, एक निर्णय पर हम पहुंचे, वो निर्णय अगर हमको सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, स्वार्थी बनाता है, तो ये जो है यह अव्यवसायत्मिका बुद्धि है। इंटेलिजेंस तो है, लेकिन गीता के अनुसार अव्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक है कुरुवनंदन। व्यवसायत्मिका बुद्धि है, मैं साधना करूंगा, सेवा करूंगा, जगत के लिए कल्याण करूंगा, ये निर्णय विचार के द्वारा आता है, इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो बुद्धि को आपने ऐसा मत करिए, जो लोग इस प्रकार के, संसार के सभी लोगों के पास बुद्धि, बुद्धिमान तो कितने हैं, और जो लोग भगवान बदमाश हैं, धूर्त हैं, जो काला बाजार करते हैं, उनकी बुद्धि बहुत भयंकर है, ट्रिमेंडस बुद्धि है। वो निर्णय भी ले लिया है उन्हें कि यही करना है, सबसे अच्छा है, और कैसे करना है, बुरा काम कैसे करना है, वो सब जानते हैं, पूरा प्लानिंग होता है। ये सब बुद्धि के कारण होता है, याद रखो। और तुम्हारा प्रश्न ये है इस प्रकार का। लेकिन जो दूसरी बुद्धि है, इंटेलेक्ट, जो जगत का कल्याण करे, निस्वार्थ करे, त्याग के लिए मुझे प्रेरित करे, इसको हम व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और वो एक है हाँ, क्योंकि दिस लीड्स अस टू गॉड। दैट लीड्स टू गॉड। चित्त प्रज्ञा है, चित्त प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि होता है ना, प्रज्ञा यानी भी बुद्धि होता है।
और स्थित प्रज्ञ है ना जिसकी बुद्धि दृढ़ हो गई है, तो उच्चतम हाईएस्ट वैल्यूज में जिसकी बुद्धि दृढ़ हो गई है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। So my point is, you don't take this. Intellect does not mean anything. Be very careful. Okay. अच्छा महाराज. And obedience महाराज, obedience. No, obedience तो दूसरी बात है। गुरु ठाकुर ने बोला है चाहिए लाटू महाराज बिल्कुल ब्लाइंड ओबीडियंस करते थे, तो वहां पे बुद्धि नहीं है। Obedience to Guru and God. शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम। शास्त्र और गुरु वो को तो बिना सोचे ठीक से स्वीकार कर लिया। तो वो श्रद्धा हो गया ना महाराज, वो श्रद्धा तो श्रद्धा है ना वो। तो ओबीडियंस इज रिलेटेड टू श्रद्धा। हाँ अच्छा ओके ठीक महाराज. Now second question महाराज. Swamiji exhorts the disciple to record his views for the benefit of fellow beings. We find ourselves somewhat in that stage of life. What should be our duty? Like Shishya is telling that I am unable to do something, though I understand all these things. तो हम भी तो ऐसे ही एक दुविधा में है, तो हमारा ड्यूटी क्या होना है? देखो ऐसा है कि एक तो ये है कि एज के कारण कुछ लिमिटेशंस हो जाते। हाँ महाराज। लेकिन उसके अतिरिक्त भी सपोज यू राइट शॉर्ट आर्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे लेख लिखो और छोटा मैगजीन जो है उसके अंदर देने का प्रयत्न करो। और तुम प्रवचन तो दे नहीं सकते, तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं कोई। ठीक। और कोई दूसरी एक छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस पास में होए तो उसमें चले जाओ, संडे को दिन अपने सर्विस दो, क्या कहते हैं वॉलंटरी सर्विस दो, सेवा करो। हाँ वो तो कर रहे हैं। बस उस प्रकार करते चले जाओ। अच्छा मतलब sometimes we feel that this is not enough, मतलब वही मतलब there are various avenues are out, try to find. हाँ Swamiji's views on Raghunandan is contradictory. On the one hand, he calls him a wonderful scholar, but in the same breath, he says that in the iron grip of his rules, the Hindu society was much oppressed. तो आप तो बोल रहे हैं रघुनंदन के बारे में, आपको Absolutely nothing, कुछ नहीं जानते हैं हम। मतलब मुझे ये कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब स्वामी जी मीन क्या करना चाहते हैं? डज ही respect him or does not he respect? No, he is not, he is denouncing it. यानी उन्होंने उसको घोड़ा बना दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमारा सुनाई नहीं दे रहा। एक रघुनंदन को ने क्या किया, लोगों रूल्स वगैरह बना के सोसाइटी को बांध दिया, ऑर्थोडॉक्स बना दिया, रिस्ट्रिक्ट बना दिया। महाराज जी मेरे को लगता है एक तरफ उनको स्कॉलर तो बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं इट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज व्हाई स्कॉलरशिप हुआ, उसने कोई रूल्स रेगुलेशन बना दिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं एक बार फिर दोबारा ये ऑफ करके ऑन करता हूँ। महाराज he is at the same time praising him and condemning him. हाँ क्योंकि उसने जो कोड्स बनाए थे वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन they were oppressive, लेकिन उनको oppressive भी हो गया। चलो नेक्स्ट। महाराज जी कुंडू जी इज रिकनेक्टिंग, उनका साउंड का कुछ आवाज नहीं आ रहा है, वो दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। महाराज जी ये जो इस सिलसिले में अभी ये रघुनंदन जी का जो किताब जो उनको लाने के लिए बोला था, वो तो खाली दुर्गा पूजा का पद्धति जानने के लिए ही स्वामी जी लाने के लिए बोला था, बाकी सब तो महाराज मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं थोड़ी देर बाहर था। अच्छा आप शुरू करो, अभी ठीक है? हाँ अब सुनाई दे रहा है महाराज। अच्छा क्वेश्चन 4 करो। हाँ महाराज। Ask your first question. एक मिनट महाराज। यस महाराज, एक मिनट।
Fourth question, Maharaj. While speaking about the plight of the poor, Swamiji chastises the Hindu society for various social evils. And throughout his lectures from Colombo to Almora, he points out many customs and practices responsible for national degradation. But he refused to get drawn into either politics or social reform. Where do we place him in the context of national resurgence? मतलब स्वामी जी का वेज क्या था? उसने तो स्ट्रिक्टली मिशन को बोल दिया पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, एंड इट्स नॉट ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट सोसाइटी के बारे में हमेशा सोचते रहे। नहीं, वो तो क्या है कि पॉलिटिक्स के जो फ्रीडम फाइटर्स गए थे, नेहरू, गांधी, इन लोगों ने किया था। So this question we cannot. Swamiji ne to is already given the outline of character building and service. These are the only things he has given. That's all. And for him, that this is the way to remove the vagaries of the society, improve the स्वामी society. जी से इंस्पायर होकर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर स्वामी जी से इंस्पायर हुए थे। ऐसे भी तो है ना कि उनके सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी ने भी स्वामी जी को पढ़ा था, तो they were also inspired by स्वामी जी and they did. ठीक मान। तो फॉर हिम दैट सर्विस एंड रिनाउंसिएशन, ये दोनों के ऊपर ही उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर चले। कैरेक्टर बिल्डिंग सर्विस। ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। और क्या है कि मेनी बुक्स स्वामी विवेकानंद एंड नेशनल रिसर्जेंस, हाँ, इसके ऊपर कई किताबें लोगों ने लिखी हैं, आर्टिकल लिखे। हाँ महाराज, कुछ तो पढ़े हैं हम लोग। रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर का भी एक किताब है उसमें। हो गया? चिंता ना है। हाँ महाराज, थैंक यू महाराज, प्रणाम महाराज। तब क्या सुबीर मजूमदार ने? हाँ महाराज जी, आई एम रेडी। Should I ask Maharaj? Yes, yes. First question, Maharaj, on page 228 in the last paragraph, in number 21 section, Swamiji says 99% of sadhus, even after renouncing lust and wealth, get bound by desire of name and fame. Now we don't see this in the sadhus of Ramakrishna mission. Whom is he talking about? अखाड़े हैं बहुत सारे। वाह, रामकृष्ण मिशन में भी तो है, ऐसा नहीं है। नहीं, it is not that much, ना? Maybe there, but है, हम लोग कहाँ तो जानते। But anyway, वो बेसिकली उस टाइम तो मिशन के बारे में नहीं बोल रहे थे ना, तब तो वो barely start। वो अखाड़े हैं ना, अखाड़े बहुत सारे हैं तो। हाँ, दक्षिणामी संप्रदाय है तो बहुत बड़ा संप्रदाय है। हाँ, lot of अखाड़ास। हाँ, 10 अखाड़े तो वैसे ही है, मतलब। हाँ, ठीक है, that is what। So उस टाइम के साधु लोगों के बारे में बोल रहे हैं। तो on page 234, second question महाराज, first paragraph में in the 22nd section, स्वामी जी फिर बोल रहे हैं, without persecution, no beneficent idea can enter into the heart of the society। क्योंकि स्वामी जी को काफी क्रिटिसाइज भी किया था, ये सब हुआ था, तो उसके बाद ही वो ये कह रहे हैं कि without persecution, no beneficent idea can enter into the heart of the society। My question is, how does persecution help? एक मिनट। Persecution is like a परीक्षा, you know। अच्छा, at a test, right। यानी persecution यानी opposition। जी। तो परीक्षा तो होगी, जो भी कुछ करोगे उसकी परीक्षा होगी। हाँ। लेकिन वो है what is there, it is like हाथी चले बाजार में, कुत्ते हुए के हजार। तो कुत्ते तो भौंकेंगे। हाँ। that हो गया ही। जी महाराज। And everyone must be tested about। I can understand, yeah, because in science also a lot of the earlier scientists discovered they were also persecuted, and still they came out on top. Hold on, you know, if that is the truth, that will hold on. Yes. Galileo and so many people like that. Yes, I remember, Maharaj. Next question, Maharaj. On page 235, same section as above, in the last paragraph, it is mentioned that Swamiji performed Homa at
Mother Kali's temple at Kali Ghat. Now it fills me with wonder how the Orthodox Brahmins allowed Swamiji, as he was a Kshatriya by birth. अरे वो जानो, उन लोगों से पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? नहीं मतलब उस टाइम वो इतने कट्टर थे और फिर भी उन्होंने अलाउ किया है। तो अरे स्वामी जी जैसा व्यक्ति जो रेनाउंस हो गया दुनिया में, उसको कोई कौन रोक सकेगा? कितनी हिम्मत है क्या वहां पे कोई पट्टे में? उनका बहुत नाम हो गया था। दक्षिणेश्वर में नहीं सब एंटर लोग करने जानते दिया। थे, तो बड़े बड़े लोग जानते थे, बड़े बड़े पंडित उनको जानते थे, वो क्या कोई रोक सकता है उनको? महाराज मैंने यहाँ पे इन बिटवीन पुजारी महाराज जो है यहाँ के, मुझसे भी पूछा था कि कैसे हुआ, तो उनका जवाब था कि होम तो कोई भी कर सकता है, उसमें ब्राह्मण ना भी हो तो कर सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। अब पता नहीं आज इस बारे में हो सकता है क्या? हाँ वो तो स्वामी जी एक्सेप्शन थे ना। जी जी और क्या, वर्ल्ड रिनाउंड थे। बिकॉज बाय दैट टाइम उनका एक वो हो गया था, नाम कितना हो गया था। तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी शायद उनको। स्पिरिचुअल पावर कैसा था भाई? हाँ, स्पिरिचुअल पावर एंड स्पिरिचुअल पावर। महाराज दक्षिणेश्वर में उनको क्यों एंटर नहीं करने दिया? हाँ वहां पे तो वहां नहीं करने बहुत दिया। दुख होता है। हाँ वो उसके लिए वो त्रैलोक्यनाथ बहुत दुख होता है। उसके लिए त्रैलोक्यनाथ निकालो मथुर बाबू सन वाज रिस्पांसिबल। पीछे है अभी तो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। तो ऑन पेज 238 in the 23rd section, middle of the page, Swami ji is talking of a realized person. तो कहते हैं making him the center within certain radius, a circle is formed, and whoever comes within the circle becomes animated with the ideas of the saint. This he refers to as grace. मेरा कहना है महाराज जी, isn't Swamiji indirectly hinting to the disciple that now that he's come in his radius, he has already received grace and the disciple is unable to realize it? I don't know. कैसे पूछा जाए तो हम लोग भी तो ठाकुर की कृपा के अंदर आ गए हैं ना। जी जी हाँ, परंतु कहाँ समझ रहे। यानी अगर आपको रामकृष्ण मिशन से इनिशिएट हो गए हो तो ठाकुर की कृपा तो चारा प्रारंभ हो ही गई है। हाँ, हम भी तो यतीश्वरानंद जी यूज्ड टू से, मैंने कहा महाराज कृपा कीजिए, हमें प्रणाम करते थे महाराज, प्लीज ब्लेस अस। जी जी, ही यूज्ड टू से ब्लेसिंग्स आर देयर, मेक यूज ऑफ देम। और फिर रामकृष्ण मिशन साधु क्या कहते हैं, भाई हमारे पास ब्लेसिंग के सिवा देने का कुछ है क्या? हम लोग कभी हैं, यानी हम भगवान प्रार्थना कर सकते हैं कल्याण के, ये ब्लेसिंग्स ही दे सकते हैं, आप ब्लेस करो, भगवान आप पर कृपा करें। लेकिन ये ब्लेसिंग्स तो हमको हमेशा मिल रही है, उसको पुरुषार्थ के द्वारा उसको मैनिफेस्ट करना है, साधना करना है। यतीश्वरानंद जी ये कहते हैं, ब्लेसिंग्स आर देयर, मेक यूज ऑफ देम, मेक यूज ऑफ इट। हम लोग तो उस परिवार के हिस्से बन ही चुके हैं, राइट महाराज। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन, fifth question on page 243 in the 24th section now, second paragraph, Swamiji says, read the history of the world and you will find that a great soul stood as a central figure in a certain period in a certain country. Animated by his ideas, hundreds of people did good to the world. Who is that person, Maharaj ji? Is it Buddha or Christ or someone else? There are so many souls, great souls are so many there. हाँ, मेरे को तो बुद्धा और क्राइस्ट, हिस्ट्री देखिए ना, बुद्धा, महावीर, जीसस, और भी क्या है, निम्बार्क है, वल्लभाचार्य है, साउथ इंडिया में कितने सेंट्स हो गए हैं, सभी संप्रदायों के लोग हो गए। बंगाल में आप संत ले लीजिए, कितने सारे सेंट्स हैं। गुरु नानक जी है। एक गुरु तो है नहीं वहां पे, तो कितने गुरु हैं, 10 गुरु हैं। हाँ, क्योंकि he is saying he did good to the world. वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, तो अपने खुद की दूसरों का जगत कल्याण करते हैं कि नहीं करते? हाँ, मुझे तो मुख्य रूप में जीसस और बुद्धा ही लगे, क्योंकि उन्होंने उनकी टीचिंग्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाई। जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अच्छा, जनरल स्टेटमेंट। अब वो बुद्ध और जीसस जो है वो सारे विश्व के लिए हो गए, लेकिन छोटे छोटे एरिया में तो छोटे छोटे संत होते हैं। तो हाँ, ऑल द ग्रेट सेंट्स ऑफ दैट टाइम। हाँ, पंजाब में ले ली तो बड़े बड़े गुरु नानक जैसे बहुत बड़े संत हुए। तो
जी 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 इतने बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी इस सिलसिले में एक चीज पूछूं, बोलूं? महाराज जी, ये गुरु नानक जी ने 500 साल पहले सिख को सिखाया था कि भिक्षा मत मांगो, काम मांगो, काम से ही पैसा मिल जाएगा खाने का। अभी भी कोई भी सिख का कोई भिक्षुक नहीं दिखने को आता है। नो, यू डोंट सी एनी भिखारी ऑफ सिख। चलो चलो, now this is not a question, you are commenting it. Now it is your wait a minute. Now what is this is not a question, it is a comment, isn't it? comment. Don't do like this. Now question number 6. हाँ महाराज जी, last question. Seeing how the disciple has recorded and reproduced the conversations, particularly in this entire section book with Swami ji, the conversations हुए हैं, he seems to have a remarkable memory, isn't it महाराज जी? इतना बढ़िया उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है, इतनी कन्वर्सेशंस डिटेल। अगर मैं आपसे मान लीजिए बात करता हूँ, एंड ऑफ द डे या कल मुझे लिखने को कहा जाए, तो शायद मैं इतनी बढ़िया तरह से रिप्रोड्यूस ना कर पाऊँ। तो अरे छोड़ो, अभी मोबाइल फोन हो गया है, वीडियो हाँ टीवी हो रिकॉर्ड गया है, सब रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो कर ले जाएगा, चिंता मत रिकॉर्ड करो कर इसके ले लिए। रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ लेकिन मैं वो ये कह रहा जमाना हूँ बदल गया है। हाँ लेकिन उनका मेमोरी को दाद देनी पड़ेगी महाराज जी। नहीं, ऐसा है कि उस जमाने में बात ऐसी थी हाँ कि even naturally this thing was generally in general people the memory was better than what is now in us. हाँ, क्योंकि स्वामी जी के लिए तो हम कहते हैं ब्रह्मचर्य में वो प्रतिष्ठित थे। No, even we forget, but even at that अभी 50 साल पहले, 60 साल, 100 साल पहले स्वामी जी के टाइम में majority of the people had better memory than what we have today. शायद क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी कम थे, प्योरिटी ज्यादा था। डिस्ट्रैक्शन कम थे, yes, so many factors. हाँ, so many factors. So many factors. व्यवसायत्मिका तो केवल स्वामी जी नहीं, केवल शिष्य नहीं है, और भी लोगों के आप देखेंगे रिकॉर्ड्स वगैरह पर। ठीक है महाराज, दैट्स ऑल महाराज जी, प्रणाम महाराज। देवाशीष पुटनाव कमा। कर दिया। महाराज जी, ये तो क्वेश्चन आपने बता ही दिया, लेकिन तभी भी मैं पढ़ लेता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन 1 पेज नंबर 238। Swami ji, grace means this: he who has realized the Atman becomes a storehouse of great power, making him, and with a certain radius, a circle is formed, and whoever within the circle becomes animated ideas of that saint. That is, they are overwhelmed by his ideas. Thus, without much religious striving, they inherit the results of his wonderful spirituality. So my question is, we have been initiated by gurus, and they are the knower of Brahman or Atman, the storehouse of great power, now making him the center, and with a certain radius a circle is formed, and we all initiated disciples come within the circle. Will we not become illumined or animated with the ideas of the saint? Thus, without the much religious striving, we inherit the results of his wonderful spirituality. Is it a right thinking? अच्छा सुनो, Sri Ramakrishna was a tremendous, he was an avatar, and people came into his gambit and they got illumined, isn't it? Yes. Swami Vivekananda got illumined, Yes. Brahmananji got illumined, and after that, how much of Katur sadhana they did? Did they not do the intense tapasya even after getting illumined? If you have got initiated as a Ramakrishna mission, in a way we are illumined to some extent. But who will do the tapasya? We are just talking of illumination. What is this? Tapasya. Yateshwaranand ji used to say, what I had to do, what I had to give, I have given. What I had to do, I have done. Now you do tapasya. महाराज जी, तपस्या का इंस्पिरेशन जो आता है
से आएगा ना, इंस्पिरेशन नहीं मिलता है तपस्या का। अब तो ये तो आपकी गलती है। मैं क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसके लिए? नहीं नहीं तपस्या करता है, कोई तपस्या करता है, कोई तपस्या नहीं करता। नहीं, कोई किसी को इल्यूमिनेशन होता है, किसी को इंस्पिरेशन मिलता है, तब भी तपस्या नहीं करता। किसी को बिना इंस्पिरेशन के मैं इल्यूमिनेट हो गया तो तपस्या करूंगा। इट ऑल डिपेंड, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं मेरा क्वेश्चन हम तो बैठे, वी आर सो वेरी हैप्पी। अरे वंस ए वीक हमारे जूम मीटिंग हो जाती, वाह वाह। अब क्या करना है, एक सप्ताह तक हमको क्या करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। ये What नहीं is this? क्वेश्चन था कि once you come within the circle that saint, illumined saint, then that प्रभाव तो आ ही जाता है, इन्फ्लुएंस तो आ ही जाता है। इसलिए बैठे रहो, डोंट डू तपस्या। ना बैठे नहीं रहेंगे उसमें थोड़ा डोंट ब्रिंग इट। मतलब है कोई सेकेंडरी। अरे ठाकुर ने सबको इनिशिएट किया और एक कठोर तपस्या करवाई, याद है कि नहीं सबको? कितनी तपस्या की लाटू महाराज ने, सूर्यानंद जी ने, ब्रह्मानंद जी ने कितनी कठोर तपस्या की। और हम बैठे, हमारे इफेक्ट तो आ ही जाएगा, इफेक्ट आ ही जाएगा, इफेक्ट आ ही जाएगा। व्हाट इज दिस? No, this will help us. You do tapasya, don't do tapasya. Why are you illuminating? Absolutely useless. अरे illumination that, मैंने कहा ना, यतीश्वरन जी told me what I had to do, I have already done at the time of initiation. अच्छा, बाप रे। Now you do tapasya. जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। No, not thank you. You will again go back to that. हे भगवान। अच्छा महाराज जी, सेकंड क्वेश्चन था ये कि स्वामी जी एक जगह बोल रहे हैं कि भाई ऑल विल अंडरस्टैंड श्री रामकृष्ण आफ्टरवर्ड्स। इवन स्वामी जी कुड नॉट अंडरस्टैंड श्री रामकृष्ण। मैंने इसके बारे में थोड़ा बोलिए, क्या व्हाट विल ही अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स? I don't understand Sri Ramakrishna. How can I say? If Swamiji cannot understand, how can I understand? What You remains? see, you read the life of Swami Sri Ramakrishna, Leela Prasanga you read, and after 5 years again read, you will find a difference. जी महाराज जी। What we understood Sri Ramakrishna 20 years ago, now we जितने read दिन it, we जाएगा understand महाराज, in a much different way. जितने दिन जाएंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा है। जी कृपा करके थोड़ा बताइए, आफ्टर 86 इयर्स आपने क्या रियलाइज किया? वो हो गया, बाद में बताएंगे। चलो सतीश ये चलो कृपा कीजिए महाराज जी। हाँ, वो कृपा मेरे पास है नहीं, वो कृपा जो है वो पॉकेट में पड़ी हुई है, निकलती नहीं। निकाल दी, सतीश आप छोड़ नहीं रहे सतीश अपने पास। सतीश महाराज जी पकड़ के रखे हुए हैं, थोड़ा बताइए महाराज। सतीश जी प्रणाम महाराज। सतीश, सतीश जी खाली घूमते हैं। स्वामी कह रहे हैं, जब सबकी मुक्ति नहीं होगी तब तक ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी मुक्ति हो गई। क्यों मैं भी, और लिखित शास्त्रों में लिखा है कि आपकी मुक्ति तब होगी जब आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कहना है कि ये स्वामी जी का जो व्यू है वो ज्यादा ब्रॉडर है और करेक्ट है। देखो, और स्वामी विवेकानंद जो आत्मा को व्यापक लिया है ना, सर्वव्यापी आत्मा है। और जब मैं अपने सर्वव्यापी आत्मा का साक्षात्कार करूंगा, मतलब यह है कि सब में अपनी आत्मा को देखूंगा, ये ठीक मुक्ति होगी हमारी। जी महाराज जी। तो हम तो उनमें आत्मा देख लेंगे, लेकिन वो तो नहीं अपने आत्मा देखते ना। आप महाराज, उन्होंने तो दूसरों में आत्मा देख लिया कि सभी में आत्मा है, पारब्रह्म है। ऐसा है कि ये तो अद्वैत वेदांत के अनुसार एक सब में ब्रह्म है, आत्मा है। लेकिन द्वैत के अनुसार आत्मा भिन्न है, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा सब भिन्न है। और मैंने जब साक्षात्कार किया आत्मा का, तो मैं आत्मा भिन्न हो गई, मैं मुक्त हो जाऊंगा, तुम मुक्त नहीं होगे। ये द्वैत का सिद्धांत।
क्या करोगे इसको? अरे ये बातें से नहीं होता, बातें से कुछ नहीं होता, ये फिलोसफी में चक्कर में जाएंगे, इसको करना पड़ेगा बाबा। हाँ, क्या फायदा डिस्कस करने से, क्या होने वाला है? लेकिन व्यू पॉइंट तो हमारा ब्रॉड ही होना चाहिए ना महाराज। अरे जो भी हो करना तो चाहिए, कुछ करो ना बाबा। ब्रॉड व्यू तो हो गया, लेकिन वो ब्रॉड व्यू भी तो होता है कि मैं जीव हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं दूसरे को मुक्त करूंगा। राइट राइट। और नीचे वाला अद्वैत वेदांती होगा कि मैं मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो गया। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता महाराज, यही मेरा कहना है। स्वामी विवेकानंद तो अद्वैत वेदांती थे, सब आत्मा एक है, उन्होंने साक्षात्कार किया था, लेकिन फिर भी जगत कल्याण के लिए, जीवों की मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हुआ तुम्हारा क्वेश्चन कि नहीं हुआ? स्वामी नहीं, ठीक महाराज, ठीक हो गया महाराज। When the Swami says, when the few samskaras of the previous life are spent, then renunciation sprouts up in the heart. Maharaj, what about the samskaras of this life? How can renunciation come until all samskaras are burnt? देखो, संस्कार जो है वो संस्कार इज द बिगनिंग ऑफ रिनंसिएशन, इज द बिगनिंग ऑफ साधना, याद रखो। क्या कहना चाहते हैं महाराज स्वामी जी? में समझ नहीं नहीं, वो अभी जो है, अब तुम स्वामी जी कहते हैं क्या, पूछो क्या पढ़े, पढ़ो तो उसको फिर से। When the few samskaras of the previous life are spent, then renunciation sprouts up in the heart. तो पहले हमारे पहले जन्म के जब संस्कार नष्ट हो जाते हैं, तब हमारे मन में वैराग्य का उत्पन्न होता है। ये हिंदी में मीनिंग हुआ तो? राइट महाराज, एक लाइफ की बात कर रहे हैं, जस्ट प्रीवियस लाइफ कह रहे, लाइफ्स नहीं कह रहे। हाँ, प्रीवियस लाइफ। अरे वो यार हो गया, तुम एक तुम्हें उन्होंने एस नहीं लगाया तो उसके ऊपर चक्कर कर रहा हो, क्या बात नहीं। एक लाइफ का होगा तो हुआ ना बाबा, उससे फर्क क्या पड़ता? तो महाराज जिसके मन में विराग होता तो उसका ये लेना चाहिए कि उसके प्रीवियस संस्कार खत्म हो गए क्या? नहीं नहीं, खत्म कहाँ हुआ, तो इस जन्म में संस्कार खत्म होंगे ना धीरे धीरे। ये मेरे को जन्म मिला है, अच्छे बुरे मेरे पिछले जन्म के संस्कारों के कारण हुआ है, और बहुत सारे जन्मों के संस्कार हो या एक जन्म के संस्कार हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? उन्होंने कहा when the few संस्कार, few। अरे हाँ, लेकिन उसमें फर्क पड़ क्या होता है, फ्यू हो या मेनी हो? वो जो फ्यू भी है उसको नष्ट तो होना पड़ेगा। जी जी, कहने उनका ये भाव तो नहीं है कि कुछ संस्कार कम हो गए जो हार्ड संस्कार से, उसके बाद कुछ तपस्या के द्वारा कुछ संस्कार कम होंगे, वो तो होंगे ही। हार्ड संस्कार कम हो गए, कुछ दूसरे संस्कार तो बचे हैं। देखो सुनो, ये जन्म, एक जन्म मुझे ये मिला है, ये पिछले कई जन्मों के कुछ संस्कारों के कारण ये जन्म मिला है। तो ये जन्म जब मेरा खत्म हो जाएगा, तब बचे हुए कुछ संस्कार और इस जन्म के कुछ संस्कारों को मिला जुला करके फिर मेरे को जन्म मिलेगा। जी महाराज। अब इसमें तुम्हारा क्या प्रश्न उठता है? मेरा यही प्रश्न महाराज, सारे संस्कार तो जैसे हम पिछले संस्कार तो हमारे कुछ हो गए, पिछले हमने कर दिए, हमने भोग लिए, उनके फल भोग लिए, लेकिन हमने खुद और भी तो संस्कार पैदा कर लिए ना संसार में। और भी तो नहीं, ऐसा है कि जब तक मुक्ति नहीं होगी, अपना स्वरूप नहीं जानेंगे, तब तक ये चक्कर बनता रहेगा। इस जन्म के संस्कार मिल जाएंगे, पिछले जन्म में फिर अगला जन्म मिलेगा, चक्कर चलता ही रहेगा जब तक ज्ञान नहीं हो जाता। से या किसी अपने अच्छे कर्म से कुछ संस्कार कम हो गए तो हमारे मन में वो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ठीक महाराज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट करता हूँ। ठीक नहीं है फिर कब उठेगा यही? नहीं मैं समझ लिया। चलो तीसरा प्रश्न लो। Only avatars have the power to dispel darkness of millions of souls and to give them liberation in one life. ये क्वेश्चन हो चुका महाराज।
महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि बट डू अवताराज एक्सरसाइज सच पावर्स? अगर ऐसा होता तो हम लोग सब मुक्त हो गए होते। अरे वो ऐसा है ना कि वो अवतार आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमको कितना करना है कितना नहीं करना। जी महाराज। वो सब भगवान की लीला समझ लेते हैं कि मुझे भगवान ने ये कहा है, अवतार आए हैं, भगवान खुद ही है तो वो अवतार ही है कि जी मुझ में तो पावर है, लेकिन मैं 50-60 साल में जी महाराज। भारत में जितना करूंगा उतना करूंगा, बाकी जो है उसको रहने दो। वे सारी माया को नष्ट नहीं करना चाहते, कैसे करेंगे? जी महाराज। न वो तो फिर मामला कहते हैं लीला सब खत्म हो जाएगी। तो ना, माँ कहती है ना, एक दो पतंगे ही कटती हैं, बाकी तो तालियां पीटती है। चलो ठीक है, प्रणाम। चलो निवेदिता। हाँ जी महाराज। महाराज मेरा पहला प्रश्न है कि in spite of so precious teaching, why many persons were not coming forward to help Swamiji? because the teachings were not for them, हाँ, because they were in bhog, जब they इतने were full of, मतलब they were in bhog, they were in selfishness, they had so many bondages, I know, yeah. psychological bondages, social bondages, इसलिए सब लोग तो नहीं आ सकते ना। यहाँ भी संस्कार आ जाते हैं, जैसे संस्कार जो भी कहोगे, सोशल बॉन्डेजेस हैं, साइकोलॉजिकल बॉन्डेजेस हैं, इच्छा होते हुए भी नहीं आ सकते। आ सकते हैं। ये अरे रामकृष्ण मिशन में तो ये रामकृष्ण मिशन स्वामी जी ने कराया, चालू किया है ना। जी जी। तो कितने लोग ज्वाइन करते हैं, सब लोग थोड़ी जानते हैं। हाँ हाँ। फिर ये क्या प्रश्न है? मतलब आधिकारिक पुरुष के मुंह से सुन रहे अधिकारी हैं ना। अधिकारी ऊपर करते हैं, देश काल का प्रश्न है, अधिकारी का पुरुष प्रश्न है, सारी बात। दूसरा प्रश्न है महाराज, why Swamiji is blaming the soil of Bengal? His illness was due to overwork in the West. क्या कहा स्वामी जी का प्रश्न है, वो क्या कहते हैं? मैं पूछ रही हूँ, स्वामी जी is blaming the soil of Bengal. किसका आवाज आ तुम रहा है? जानो भाई, मैं तो जानता नहीं बंगाल के बारे में। यू आर ए बंगाली, यू विल बी एबल टू से। ना हाँ, मैं बोल रही हूँ कि स्वामी जी का जो ये इल हेल्थ हुआ था, वो तो ओवरवर्क इन द वेस्ट, इतने सारे लेक्चर दिए, इसके कारण हुआ था ना, इसलिए ये प्रश्न पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में था, 2 साल भूगा था। हाँ? क्लाइमेट के चलते हुआ। क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, and rice eating people. महाराज जी आपसे ये क्लाइमेट इज नॉट हेल्दी। हाँ महाराज जी, आपने ये पहले भी बोल चुके हैं कि कठोरता के लिए नहीं बनी है वहां पे, जैसे नॉर्थ में है, नॉर्थ के लोग ज्यादा कठोरता सह सकते हैं। हाँ, पंजाब में, बंगाल में जो है ना, एक बटालियन भी नहीं बनी, या एक बटालियन है बंगाली, लेकिन पंजाबी लोग जो हैं वो फिजिकली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग। बंगाल दे आर सॉफ्टर। अब तीसरा प्रश्न तो ऑलरेडी हो गया है। मेरा क्वेश्चन है, डिड स्वामी जी फाइंड ए बैंड ऑफ यंग बंगाल फॉर हिज वर्क? बाद में तो अरे मिला सो है। मेनी बंगाली से जानते रामकृष्ण मिशन। हाँ, बाद में मिला है तो ठीक है, सब मिले तो है। हाँ। चौथा प्रश्न है, why Swamiji is against Kartal and Kirtan? Why doing Kirtan the country will be converted into a country of women? ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो यह है भक्ति को, भक्ति डज नॉट मीन ओनली कीर्तन। अच्छा। अर्जुन की भक्ति भी तो है। भगवान ने अर्जुन को भक्ति कर करके और युद्ध करने को सिखाया है। तो पर चैतन्य महाप्रभु तो कीर्तन के ऊपर ही जोर देते थे। कीर्तन देते होंगे, लेकिन उनका संप्रदाय क्या हुआ? वो जोश आता है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गर म्यूजिक और ड्रम्स में, इसलिए वो कह रहे आता है, लेकिन तपस्या का भाव नहीं आता। हाँ महाराज, वही तपस्या का भाव नहीं आता। हाँ, स्वामी जी उस वक्त वो जगाने की कोशिश कर रहे थे ना, इसलिए उन्होंने वो ड्रम्स की बात की और ध्रुपद म्यूजिक की बात की।
और चैतन्य महाप्रभु ने जो है ना वो मुस्लिम्स के वो उसके उस समय के अनुसार कुछ किया हो। to हाँ stop the conversion from Hinduism. अब इधर जी महाराज, है, बिल्कुल फिफ्थ सही। क्वेश्चन है, स्वामी जी इज आस्किंग टू stop listening the ख्याल and टप्पा and advise to listen Drupad, ये भी उसी लिए बोला है उन्होंने। इसीलिए हाँ, और तो ख्याल टप्पा में कोई ताल और ये सब कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, ध्रुपद में चौताल छपताल जगह त्याग बड़ा सावधान होके देखना पड़ता है। ये हाँ, ज्ञान गाने के चीज में जो है वो तो उसमें भी जो है वो संयम का उपयोग करना पड़ता हम्म। तो इसलिए स्वामी जी के कहने अनुसार वी शुड चैंट, जो मंत्र है वैदिक मंत्र को रोज लाउडली चैंट करना है हमको। है। वो तो ठीक से करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक से। उसके वो सुर वगैरह के साथ में उसके आदा उदात्त अनुदात्त जो है मात्रा के अनुसार करना चाहिए। ठीक है। छठवां प्रश्न है, हाउ कैन वी मैनिफेस्ट द हाईएस्ट मॉरल करेज इन ईटिंग, ड्रेसिंग एंड लाइंग, सिंगिंग, प्लेइंग? ये वर्ड है ना, वो उसका मतलब क्या है? मतलब ये 230 है कि पेज में। देखो हाँ ऐसा है, ये तुमने अच्छा हाँ प्रश्न किया है। हाँ हाँ धर्म का अर्थ क्या है? प्रश्न ये है, हाँ धर्म हाँ का साधना का अर्थ क्या है? वो हाँ सुबह शाम 1 घंटा सुबह ध्यान जप कर लेना, शाम को ध्यान जप कर लेना, यही क्या हाँ, साधना ये हुई? नहीं, ये नहीं, ये नहीं यानी है। प्रत्येक हम्म, बात में बातचीत हो रहे हैं तो इसमें भी हम्म, मुझे संयम का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक। संयम, सेल्फ कंट्रोल एट एवरी लेवल, हम्म, खाने हम्म, में, बैठने में, सोने में, हम्म, कपड़े हम्म, पहनने में, इन हम्म, सब के अंदर अपनी वासनाओं को कंट्रोल करना, संयम करना, दिस इज द फंडामेंटल और स्पिरिचुअल लाइफ, याद रखो। हाँ, ये बिल्कुल साधक नहीं को यही समझते, करने का। बिल्कुल नहीं समझते। हम्म, हम हम्म, केवल हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं, हमारे हाथ में कंट्रोल, हाथ पैर पे हम्म, कंट्रोल नहीं, हमारे मुख पे कंट्रोल नहीं, हम्म, सारा जीवन जो है वो हम्म, इतना बुरी आदतों से भर गया है। लेकिन हम्म, सब कुछ सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, इज वेरी वेरी हम्म। इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद है जो ये घटना हुई ना, ब्रह्म यहीं पर ब्रह्म है और सब स्टॉप, स्टैचू कैसे मानोगे? तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाइल टेलिंग दिस इज ब्रह्म, डिड एवरीवन वेंट इनटू निर्विकल्प समाधि? नॉट निर्विकल्प समाधि। देन व्हाट वाज दैट? ट्रांस वाज नहीं, व्हाट? बिल्कुल मन जो है वो शांत, फॉर द टाइम बीइंग मन शांत हो हाँ, मन शांत हो गया। गया। हाँ, हाँ। मन शांत, फॉर द टाइम बीइंग मन बिल्कुल शांत हो गया। हम्म, हम्म, और उनको एक सॉर्ट ऑफ हिंट मिला कि भाई ब्रह्म है, यानी आत्मा हाँ है। अपने आत्मा का स्वरूप मानो हम थोड़ा सा पहचान लगे। हाँ हाँ, जैसे ही अब मन शांत हुआ तो बॉडी भी शांत हो गया। न सब मन पे, अरे हे हाँ भगवान, दोनों एक साथ ही होते हैं वहां। उस समय तो हाँ खड़े हो हाँ। गए सब, चुपचाप हो गए। पर 15 मिनट महाराज, 15 मिनट कैसे? बहुत डिफिकल्ट है ना। 15 क्यों मिनट इज नहीं? टू मच लॉन्ग टाइम। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? तुम ध्यान जब कितनी देर करते हो? हम लोग तो साधक है। नहीं नहीं, वो तो जो भी हो, हाँ वो वातावरण का फर्क नहीं होता क्या? वातावरण है, हाँ एक हाँ सिद्ध हाँ, महापुरुष बैठे हुए हैं, अवतारी पुरुष बैठे हैं, उसका प्रभाव नहीं होगा? अच्छा। हाँ? ठीक है। एक उसके बाद वाला प्रश्न है जो स्वामी जी आस्किंग डिसाइपल टू शेयर हिज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद द अदर्स, इज दिस आल्सो एडवाइजेबल फॉर अस? ऐसा है कि इफ यू कैन हेल्प समवन, हाँ अब जैसे हम प्रवचन देते हैं, हाँ हाँ इस प्रकार से होता है, बट बी वेरी केयरफुल, व्हाई शुड यू डू इट? डोंट डोंट हाँ, एक्सपीरियंस, नहीं आप यू डोंट से दैट आई हैव एक्सपीरियंस दैट। ठीक, करेक्ट। हाँ, उनको ये जनरल वे में कह सकते हो कि साधना करने पे इस तरह की बात होती है। हो सकती है, ओके। डोंट डोंट से पर्सनली। Mm. Uh, what is this spirituality which do not benefit others? When we are sadhakas, how can we help others? ये तो आपने इसे बताया अभी। देखो, सुनो सुनो, दो बातें। एक ठीक ठीक अच्छा साधक बनना अपने आप में एक इम्पोर्टेंट
लोगों को बढ़िया। कल्याण का एक हेल्प करता। और ठीक दूसरा, है। जब मौका आवे, कभी मौका मिले, अपने भक्तों में के साथ में थोड़ा भक्तों का डिस्कशन कर लेते। और कभी ठीक कभी है। आपने क्वेश्चन आंसर कर लिया, आर्टिकल लिख दिया, इस प्रकार हम्म, कर। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन महाराज, वो जो स्वामी जी कह रहे हैं ना, और डिसाइपल इज टेलिंग ऑर्थोडॉक्स हिंदूज वर क्रिटिसाइजिंग द लाइफ ऑफ द बेलूर मठ सन्यासी, तो ये क्यों कह रहे हैं ये? इसलिए लास्ट। हाँ हाँ, मैं तो समझ रही थी आइडियल उनका लाइफ है, तो फिर क्रिटिसाइज क्यों नहीं नहीं, करते वो ऐसा ऑर्थोडॉक्स? है कि वो तपस्या, बाहरी तपस्या नहीं दिखाई देती। हाँ हाँ। हाँ। और अभी भी अगर इस प्रकार से आजकल तो सब एस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन हाँ, मैं खुद अपने आप को क्रिटिसाइज करूंगा क्रिटिसाइज कि करेगा। मेरे हाँ। जीवन में इतनी तपस्या और संयम नहीं है जितना होना चाहिए। ये हम अपने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर बाहर के लोग क्यों कर रहे मैंने हैं? तो ये हुआ ना कि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी हूं ना मैं, हाँ हाँ हाँ, महाराज जी तो बाहर जैसे से रामकृष्ण मिशन पर बाहर सन्यासी, के आई लोगों में तो मोर हम लोग, आप केयरफुल। लोग आदर्श है ना। हाँ। नहीं नहीं, हम अपने आप को देखते हैं तो। ठीक है। उस टाइम ये जो सन्यासी रामकृष्ण मिशन के थे वो एक नए तरह के सन्यासी थे। और नए तो तरह के सन्यासी। हाँ, तो लोग उसको समझ हाँ नहीं हाँ, पाते थे कि क्या कर रहे हैं वो, कि वो ध्यान ठीक, जब भी कर रहे हैं बोलते हैं और बार और सेवा भी कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, सेवा कर ये रहे हैं, तो इसके लिए उनको है, उनको करेक्ट। तो वो भस्म नहीं लगाया, बाल बड़े नहीं किए, कुछ नहीं किया, हाँ 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 तो एक दूसरा हाँ ही इमेज बना था। हाँ जी। लोग समझ नहीं। हाँ। बस मैं महाराज, हो गया मेरा प्रश्न। प्रणाम अच्छा, महाराज। शिवानी। प्रणाम महाराज। हाँ भाई। महाराज एक मिनट। महाराज फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पेज नंबर 230। In eating, dressing or lying, in singing or अभी बताया। playing, in enjoyment or disease, always manifest the highest moral courage. So what is this highest moral courage? Actually, अब highest moral courage means unselfishness. ओके। और ऐसा है कि ये सोचना है कि आई मस्ट बी द सेंटर ऑफ ऑल अवर मोरालिटी, यानी ऐसा करेज, ऐसा ऐसा मुझ में पावर होना चाहिए, ऐसा उत्साह होना चाहिए, करेज होना चाहिए कि मैं सत्य को अपने जीवन में डालूंगी, मैं निस्वार्थता को जीवन में डालूंगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनको पालन करना, ये कैसा करेज है कि नहीं है? इस दृष्टि से हाईएस्ट मोरालिटी का करेज का है, मॉरल करेज। महाराज अभी आपने मॉरल बताया करेज, संयम का, मॉरल संयम। करेज, moral courage means to be able to put the highest value, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, निस्वार्थता, उसको जीवन में उतार सकना, इसको, इसका पावर होना चाहिए, इसको हम मॉरल करें। महाराज वो तो ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर अगर आप बताएंगे तो, कि जैसे ईटिंग, ड्रेसिंग, लाइंग, सिंगिंग, प्लेइंग, तो इसमें कैसे? ऐसा है कि हमारे सामने एक टेबल, आज तो भंडारा है हमारे यहाँ, और मैं जाके और उसमें जो जो मर्जी मैं खा जाऊं, कंट्रोल नहीं करूं। लेकिन मैं जाऊंगा उसके बाद, नहीं मैं नहीं खाऊंगा इतना, मेरे को जितना खाता हूँ वैसा ही खाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। ठीक। आई हैव यूज्ड मॉरल करेज। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रसाद के तौर पे जैसे थोड़ा सा लिया, बाकी छोड़। अच्छा महाराज, सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 233। Nothing good in the world becomes fruitless, be it work or thought. So can you explain this with some examples? Nothing good in the world becomes fruitless. How? जो हमने क्या शुभ चिंतन करेंगे, तो याद रखो, ये ध्यान रखना कि एक मेंटल एटमॉस्फेयर रहता है। तो जब मैं शुभ चिंतन करता हूँ तो मेंटल एटमॉस्फेयर मेरा, वो सारा जो जगत का एटमॉस्फेयर
वो शुभ होता है। और अगर मैं बुरे पाप विचार करूंगा तो मैं ये एटमॉस्फेयर को बुरा कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको किए चले जाना चाहिए, वो कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है महाराज। अच्छा, Third question, page number 243. Couldn't you give one life for the service of others? In the next life, you may read Vedanta and other philosophies. This, my question is, which is good, doing good to others or seeking God? we are making this question because we have made a difference in this. और स्वामी जी ने भी जो कहा है तो दो बातें अलग कही। और स्वामी जी एक और तो वेदांत की बात करते हैं, दूसरी ओर जगत कल्याण की बात करते हैं। जाओ काम करो, काम करो। तो वो उनका काम करना वेदांत से अलग है क्या? These are not two different things. याद रखो। Seeking God, is it so easy? नहीं, इजी तो नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन अपने लिए ही पूछा था कि मतलब वो एक लाइन पे जाना अलग चीज है और काम करना एक अलग चीज आ रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों चीजें अलग मान लिया इसलिए प्रॉब्लम कर रहे। एक मिलाना है। तुम यदि एक काम करो ना, सुबह सिर्फ ध्यान जब भी करो, एक ही करो, नहीं कर सकोगे ना। अरे बड़े बड़े साधु भी रामकृष्ण मिशन के क्या 4-6 घंटा ध्यान कर लिया, राजा माला बारिश, बाकी बाकी समय क्या करते? वाराणसी सेवाश्रम में तो सेवा करते थे बड़े बड़े सन्यासी। तो वो क्या सीकिंग गॉड से अलग था? नहीं। तो फिर ठीक है। अल्टीमेट अटेंशन हमारा एक चीज होना चाहिए, और उसके बाद में जो लाइफ स्टाइल है उसको आप एडजस्ट कर लो, चेंज कर लो। ठीक है महाराज। ऐसा है। अनसेल्फिशनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट। अनसेल्फिशनेस। और तो आप देखेंगे कि ध्यान जप और सेवा वो सब बराबर हो जाता है। इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन, लक्ष्य अगर निर्धारित होवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं उठेगा। ध्यान और सेवा उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी जब लक्ष्य निर्धारित है। महाराज, जब से मतलब आपकी क्लास ज्वाइन की है तो मैं यही चीज सोचती हूँ कि ये भगवान ने काम दिया जो भी, तो वही करने जा रहे हैं, तो वो ठीक है। वो तो सभी को पूछा जाए तो ये रामकृष्ण मिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो वही तो कर रहे हैं, भगवान का काम ही कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते। तो उसमें विश्वनाथ दर्शन करने भी चले जाते हैं, गंगा स्नान करने भी चले जाते हैं, ध्यान जप भी कर लेते हैं और रोगी नारायण की सेवा भी कर लेते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आती। ठीक है महाराज। महाराज महाराज एक क्वेश्चन थे। वो जो मेरी और मार्था की स्टोरी में है, तो उसमें जो सिस्टर वो जीसस के पास बैठे हुए, हाँ वही श्रेष्ठ है। वो वही श्रेष्ठ क्या है ना हुआ? महाराज। ईतू घोष। ये तो उनका वाईफाई वीक है वहां पे महाराज जी कह रहे थे, इसलिए चला गया। वो मैरी बैठी हुई थी, मार्था सेवा कर रही थी। तो वो मार्था ने आके मैरी को कहा कि मैं तो सेवा कर रही हूँ, तुम यहाँ बैठी हुई हो। तो जीसस ने कहा मैरी मैरी, मार्था, वो जिसने मैरी ने जो सिलेक्ट किया है वही ठीक है। तो मार्था में, मैरी और मार्था में सेवा और भगवान का भजन दोनों अलग थे, उसके अनुसार सेवा जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ना। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके ऊपर क्रिश्चियनिटी में बहुत डिस्कशन हुआ। उसके बाद में आता है कि बाद में कहानी आती है कि शाम को ठाकुर बैठे हुए थे, जीसस बैठे हुए थे, मार्था आती है, उनके चरणों में बैठती है, मैं जीसस उसको सांत्वना देते हैं
और उसको उपदेश देते। तो वहां पे क्लियर कट कंसेप्ट बताया है, एक एक्टिव लाइफ और कंटेम्पलेटिव लाइफ। और यहाँ पर भी जब एकांत में आप जाकर बैठेंगे 15 दिन 7 दिन के लिए एकांत में चले जाइए, सर्विस मत कीजिए। वाराणसी रामकृष्ण सेवाश्रम में पेशेंट रोगी नारायण की सेवा नहीं करके 15 दिन 7 दिन जाके एकांत में ध्यान जप कीजिए और फिर आके कर्म कीजिए। तो ये डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, आवश्यक है, नहीं तो गहराई नहीं आती हमारी साधना। कर्म जो है वो कर्म सेवा में परिणत, सेवा जो है वो भगवान की साधना में परिणत नहीं होती। महाराज ठाकुर कहते हैं ना, अधिक कर्म करते करते अपने आप ही कर्म खत्म हो जाते हैं। शायद मेरी का यही होगा। और ठाकुर तो कर्म बहुत सारी बातें, चले जाते हैं, कर्म ठाकुर कई अपने आप खच जाते हैं। ठाकुर कई प्रकार की बातें करते हैं और फिर कर्म करने की इतनी गाली भी दे देते हैं वो। हाँ वही मेरी का कर्म खत्म हो गया है। मेरी खाली ओंकार में ही है। हो गया, बंद करें? जी महाराज। अच्छा सुनिए, अगली बार कौन करेगा समरी? मेरा है महाराज। तुम्हारा है, ठीक है, ओके। डिसाइड हो गया है। अंतिम मंत्र। हाँ। अच्छा 1 तारीख को है महाराज। मैंने प्रश्न भेजा था महाराज। अरे तो बोलो ना, क्वेश्चन तुम्हारे बीच में क्यों नहीं आ रहे? बोलो जल्दी प्रश्न पूछो। खत्म होना नहीं वो इंटरनेट ऑफ हो जाना। अच्छा महाराज, मेरा पहला प्रश्न है, फ्रॉम द टेक्स्ट according to Vedanta, the state of individualized existence is the root of bondage, and the infinite intelligence through desires and effects of works appears bound in that limiting condition, when by means of discrimination that limiting condition फिर गायब हो गया, कुछ नहीं आ रहा है आवाज। इंटरनेट नहीं, उनका इधर इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है महाराज। तो फिर छोड़ो उसको, ये तो छोड़ो, नहीं होगा। महाराज शांति में। शांति ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।